I have also highlighted on previous occasion that wherever the provisions of Order 39, so far as grant of injunction is concerned, is not applicable in that particular facts and circumstances of a case, then under section 151, inherent power, the court may grant injunction. And I have also pointed out certain decisions. Those who have missed that lecture or did not find out that decision, kindly take note of that decision, which is a very important, and it will be just like a torchlight whenever you may come across such situation when your case does not come either any of the category of Order 39 Rule 1, Subclause 1, A, B, C, or Subclause 2, then you may take shelter under Section 151 by virtue of a decision reported in Mansar versus Raj Bahadur. Mansar versus Raj Bahadur, AIR 1962, Supreme Court 527. Then another decision is also on the same point by the Patna High Court. It was a case arising out of a succession matter under the Indian Succession Act, because Indian Succession Act is also a special act concerning the grant of probate letter of administration and succession certificate. And in that act, there is no provision for grant of injunction. And since the proceedings of probate letter of administration and succession certificate are not a suit as is meant under the provision of CPC, that is a proceeding under that act, which is called testamentary suit, testamentary case, or testamentary proceeding. When the matter becomes contentious, then it shall be treated as a suit. That suit is not like a title suit, but it will be a test suit. So firstly, there is a petition, and if there is a contention, then it is converted to test suit. But under wrong notion, in the district courts, it is being registered as title suit, or it is being said as title suit. In the High Court, it is not said as title suit. It is registered as, when it is at a stage of petition, it is registered as test case, and after contention, when it becomes contested, then it is registered as testamentary suit. But in the entire act, there is no provision for grant of injunction. In that situation, in order to protect and preserve the property under the proceeding, the court has taken note of the situation after considering Section 247 of the Indian Succession Act, which prescribes for the appointment of an administrator to manage the estate of the deceased who left the will, and that will is under scrutiny before the probate court. But in that case also, the Honorable Patna High Court has passed an order of injunction and has held that either the court may appoint an administrator or may issue injunction by taking resort to the inherent power. This judgment is reported in a case Amrendra versus Prem Kumar, 2013, Volume 1, PLJR 853. I am repeating, Amrendra versus Prem Kumar, 2013, Volume 1, PLJR 853. It is a case relating to grant of probate under the provisions of the Indian Succession Act 1925. There is another old decision also on this point of Calcutta High Court, which is reported in a case Nirodh versus Chamatkarni. Nirodh versus Chamatkarni, 19 CWN 2006. CWN means Calcutta Weekly Note. In that case also, the Honorable Calcutta High Court has held that in a extreme case, the probate court may grant injunction. That is why I submitted at the very outset
that where the case is not covered under any of the provisions of Order 39, then the court has power to grant injunction under inherent power. Similar type of judgment is also there in a case of Atul versus Nirupama. Atul versus Nirupama, it is reported in AIR 1951 Calcutta 561. These three judgments are very important and the principles have been decided so far as grant of injunction in those cases where provisions of Order 39 are not applicable. Now I come to the exact provisions of Order 39. Under Order 39, some principles have been laid down by the apex court as well as the different high courts regarding grant of injunction. On plain reading of Order 39, Rule 1, 2, or any other provisions of CPC, it does not appear that there are some straitjacket formula for granting injunction or refusing injunction. But the principles evolved by judicial pronouncement and three ingredients came out of those principles for grant of injunction. First is prima facie case. Second is balance of convenience. And third is irreparable loss. I will take up one by one. Prima facie case is not properly understood. Most of the members of the legal fraternity, somewhere in some judgment, it is said that it means a strong case. Somewhere it is said there must be some excellent case. Somewhere it is said that the plaintiff is bound to succeed in his case or in his claim. Then it will be treated as a prima facie case. But this is not the correct proposition of law. Correct proposition of law is that prima facie case means that there is a fair case to be tried, to be adjudicated upon. Fair case means the facts are clear, there may be a dispute on facts, and those facts are not barred by any law, and there is no legal infirmity in the pleading of the plaintiff who has prayed for grant of injunction. There may not be a good chance of success because at the very initial stage the court cannot ascertain that the plaintiff has got very good chance of success or excellent chance of success or the plaintiff is bound to succeed in the suit. So the grant of injunction is not dependent upon the success of the suit in favor of the party who prayed for injunction, because at the very initial stage where prayer for injunction is made, the court cannot anticipate that the judgment would be passed in favor of which party, because at that time there was no evidence, either documentary and oral, and the court cannot determine without those evidence that who is the party who would become successful in the litigation or the issue would be decided in whose favor. There is a procedure, all of you are very aware that there is a pleading and counter pleading, means plaint and written statement, then the issue of fact and issue of law under the Provisional Order 14, then adjudication will start after leading evidence by both the parties, oral as well as documentary. Then there will be an argument, thereafter judgment. So in this period, without coming across all the procedure, and at the fag end, if every material of fact and law are before the court is not in a position to open its mind that who would be successful party in the suit, or whether the suit is fit to be dismissed or it is fit to be decreed. So after a long journey, the court can determine. So if this principle, hard and fast principle, is understood for grant of injunction as a condition precedent, that there must be a strong and excellent case and chance of success of the plaintiff, then hardly there will be an injunction in any case. Therefore, the correct proposition of law which has been settled down by the apex court is that prima facie case means
in a case where there is a fair question which has been raised by the plaintiff who has applied for injunction is fit to be tried. Means it is not absurd, it is not frivolous or vexatious, or it is not barred by any law. Means it is a fair question to be tried. The plaintiff may succeed, may not succeed at the fag end of the trial, but it appears that it is a case to be adjudicated upon and there is a fair question. In that case and in that situation, the court may hold that the plaintiff has got a prima facie case. So first ingredient is prima facie case. Then second ingredient is, if the court finds that the plaintiff has got prima facie case, then the second ingredient would be examined, that whether balance of convenience lies in favor of the plaintiff or not. Balance of convenience means who is in a better position, because the court has to judge after balancing the materials which has been brought before the court at that stage, which may be in a shape of document or which may be in a shape of pleadings of the parties, and in addition to the injunction petition filed by the plaintiff and so cause or rejoinder or objection filed by the defendant. So these are the materials by which the court has to examine that the case lies in whose favor, in whose favor there is a balance of convenience, जिसको कहते हैं सुविधा का संतुलन. जैसे तराजू पर तौलते हैं तो दोनों पलड़ा बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर जिसका पलड़ा भारी लगेगा उसके हिसाब से बैलेंस देख रहा है कि अगर इंजंक्शन ग्रांट करते हैं तो इसका पलड़ा बराबर हो जाएगा. अभी पलड़ा लग रहा है विपक्षी का कि भारी है, अगर ये ग्रांट करेंगे तो इसका बैलेंस हो जाएगा इंजंक्शन इसके पक्ष में जाने से, तो इसके लिए कन्वीनियंट होगा. ये जज करना पड़ेगा. ये बाय एंड लार्ज एक्सपीरियंस से होगा और रिपोर्टेड केस लॉज पढ़ने से होगा कि किस परिस्थिति में कोर्ट ने कहा है कि हाँ इसमें बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस किसके पक्ष में है. तो इस पर भी कुछ जजमेंट हम नोट करा देंगे, उसको आप लोग पढ़िएगा. पढ़ने के बाद देखिएगा कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के बारे में क्या क्या कहा गया है. और तीसरा इंग्रेडिएंट है इर्रिपेरेबल लॉस. तो इर्रिपेरेबल लॉस का मतलब सीधा डिक्शनरी में नहीं है रिपेयर से बना इर्रिपेरेबल, तो जिसका रिपेयर नहीं हो सके, तो ऐसा लॉस जिसका रिपेयर नहीं हो सके. तो जब कोई भी लॉस होता है तो उसको कंपनसेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग में हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में हो. तो इन टर्म्स ऑफ मनी लॉस को कंपनसेट किया जाता है. तो ऐसा इंजुरी अगर होगा जो मनी से कंपनसेट नहीं हो सकता है, तब वहां पर इंजंक्शन करना आवश्यक है कोर्ट को. तो तीनों बैलेंस में अगर है, किसी एक पक्ष के पक्ष में है, प्राइमा फेसी केस भी प्लेंटिफ के पक्ष में है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी है और इर्रिपेरेबल लॉस की भी संभावना है. अगर 100% नहीं है तो कुछ है तो भी इंजंक्शन का केस बनता है. तो ऐसे स्थिति में कुछ केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको और भी देखना है कि पार्टीज का कंडक्ट क्या है और केस में जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस है उसकी परिस्थिति क्या है. इसी तरह से देखने के बाद तीनों इंग्रेडिएंट रहने पर इंजंक्शन दिया जा सकता है. कभी कभी ऐसा भी जजमेंट मिलेगा कि प्राइमा फेसी केस है और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है लेकिन इर्रिपेरेबल इंजरी नहीं है, तो फिर भी दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि प्रॉपर्टी को डैमेज से, वेस्टेज से बचाना है और प्रोटेक्ट करना है. तो इसलिए इंजंक्शन दे देना न्याय हित में जरूरी है, तो इंजंक्शन देना चाहिए. तो ऐसे स्थिति में कुछ जजमेंट है जो आपके लिए जानना जरूरी है और उसको नोट करना भी जरूरी है. तो एक तो ये हुआ कि तीनों इंग्रेडिएंट है तो इंजंक्शन हो जाना चाहिए. कुछ जजमेंट में मिलेगा कि तीनों इंग्रेडिएंट है
फिर भी कंडक्ट ऑफ प्लेंटिफ ऐसा होना चाहिए विदाउट एनी ब्लेम। प्लेंटिफ ने कोई गड़बड़ नहीं किया हो, उसके कंडक्ट से भी पता चलना चाहिए। अगर मान लीजिए तीनों बैलेंस है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी है, रिपोर्ट लॉस भी है और प्राफेसी केस है, मतलब तीनों इंग्रेडिएंट प्लेंटिफ के फेवर में है, लेकिन उसके कंडक्ट से लगता है कि वो कुछ उसका एक्टिविटीज गलत है, वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज है, कुछ कॉलुसिव एक्टिविटीज है, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम एनी ब्लेम, ये होना चाहिए। तब कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीनों इंग्रेडिएंट रहने पर भी अगर डाउटफुल हो गया एक्शन प्लेंटिव का तो इंजंक्शन नहीं हो सकता। कभी ऐसा भी होता है कि प्लेंटिव के पक्ष में प्राइमा फेसी केस है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी है, लेकिन डिफेंडेंट को ऐसा इंजुरी हो जाएगा इंजंक्शन ग्रांट करने से कि उसके लिए इरिपेरेबल हो जाएगा, तो उसको भी कोर्ट को तब बैलेंस करना पड़ेगा कि अगर जैसे कि एक एक्सट्रीम केस है कि दो पार्टी में डिस्प्यूट है, एक पार्टी ने एक कॉस्टली लैंड टाउन का बिल्डर को दे दिया और बिल्डर उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दिया, 3 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, सूट फाइल हुआ और इंजंक्शन का प्रेयर हुआ, तो बिल्डर आ गया कोर्ट के सामने कि हमारा 3 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो चुका है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, इंजंक्शन हो जाएगा तो अभी हमारा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, हमारा पूंजी भी नहीं लौटेगा, तो जब तक सूट चलेगा तब तक सब ऐसे ही पड़ा रहेगा इंजंक्शन होने से। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सट्रीम केसेज में परमिट कर दिया। प्लेंटिफ का केस प्राइमा फेसी सब कुछ रहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने इंजंक्शन नहीं दिया और बिल्डर को परमिट कर दिया कि आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, तो क्या होगा, सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द सूट। जिस पार्टी ने बिल्डर के साथ एग्रीमेंट किया वो पार्टी के पक्ष में अगर फैसला होगा तो बिल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रह जाएगा। अगर उसके पक्ष में नहीं हुआ और प्लेंटिफ के पक्ष में हुआ और उसके पक्ष में कुछ नहीं हुआ या पार्ट हुआ, तो जितना हुआ निर्णय उसी के हिसाब से बिल्डर का राइट्स एंड लायबिलिटीज भी तय हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ डिफरेंट जजमेंट है जो आपके लिए जरूरी है। और एक प्रिंसिपल के लिए, एक इंजंक्शन के प्रिंसिपल के लिए एक लेटेस्ट जजमेंट है, उसमें इंजंक्शन के बारे में बहुत अच्छा से लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो आप लोग पढ़िए। मारिया मार्गाडिया वर्सेस इरास्मो जैक, ये जजमेंट रिपोर्टेड है AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट 1727। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि 3 जजेस बेंच के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, तो ये जजमेंट एक तरह का लैंडमार्क जजमेंट है और इट इज ए just like a torchlight so far as the issue of injunction is concerned, in what circumstances injunction shall be issued or not issued. irrelevant पैराग्राफ है कि कब इंजंक्शन रिफ्यूज होगा, कब ग्रांट होगा, इस जजमेंट का पारा नंबर 86 to 89, ये पारा में 86 से 89 तक के इस पारा में डिटेल्स डिस्कशन है और कंडीशंस डिस्कस है कि कब ग्रांट होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। और उसी तरह से एक जजमेंट और है, यह है सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कंसर्निंग। अगर कोई व्यक्ति जायज या नाजायज कब्जा में है, मतलब उसका टाइटल नहीं है लेकिन कब्जा में है, और उस व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति बेकब्जा करना चाहता है, तो दूसरा व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता है। सेक्शन 6 में पजेशन के आधार पर सूट फाइल होता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दी पजेशन। अगर उसका नहीं भी है टाइटल और पजेशन है, तो वो कोर्ट में प्रेयर करेगा इंजंक्शन का, तो उसके पजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंजंक्शन हो सकता है। किससे? कि कोई थर्ड पार्टी यानी ये स्ट्रेंजर हो, आउटसाइडर हो, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करे, उसके लिए इंजंक्शन हो सकता है। लेकिन जिसका टाइटल है, ट्रू ओनर जो है, कब्जा किसी और का है, ट्रू ओनर कोई और है, तो ट्रू ओनर को इंजंक्ट नहीं किया सकता, इवन दो कि उसका कब्जा है,
कब्जा प्रोटेक्ट करने के लिए वो, लेकिन ट्रू ओनर को इंजक्ट नहीं किया जा सकता है इन ए केस अंडर सेक्शन 6, जिसको कि समरी सूट कहते हैं। इस पर एक जजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसका रेफरेंस है सोपन सुखदेव वर्सेस असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर, पैराग्राफ नंबर 25 और 26। ये रिपोर्टेड है AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट 1801। उसी तरह से सेक्शन 6 के केस में मैंडेटरी इंजंक्शन नहीं हो सकता है। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, सेक्शन 6 का ही केस था। वो केस है मोहम्मद महताब खान वर्सेस खुशनुमा इब्राहिम खान AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट 1099। ये जजमेंट, दो जजमेंट स्पेशली हमने आपको दिया जो सेक्शन 6 के सूट का है, स्पेसिफिक रिलेटेड। वो स्पेशल तरह का सूट होता है जो पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, इसलिए उसका भी जानना जरूरी है। और एक दिया जनरल मारिया मार्गेडिया का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में प्रिंसिपल डिसाइड किया है कि कब ग्रांट होना चाहिए और कब नहीं ग्रांट होना चाहिए। उसके पहले 3 डिसीजन दिया, 2 कलकत्ता हाई कोर्ट का, एक पटना हाई कोर्ट का और एक सुप्रीम कोर्ट का दिया, जो 151 के आधार पर इंजंक्शन ग्रांट किया सकता है। उसके अलावे एक इंजंक्शन ऐसा भी होता है कि प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट लाता है और ये कहता है कि डिफेंडेंट को इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में किसी भी कोर्ट में सूट फाइल करने से रोक दिया जाए, उसको बोलते हैं एंटी सूट इंजंक्शन। तो एंटी सूट इंजंक्शन CPC में नहीं होता है, वो सेक्शन 38 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में होता है। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आप पढ़िएगा, वो है मोदी इंटरटेनमेंट वर्सेस WSG क्रिकेट AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 1177। AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 1177। इस केस में एंटी सूट इंजंक्शन ग्रांट हुआ है और इसमें प्रिंसिपल्स भी डिसाइड हुआ है। अब एक केस ऐसा है कि बिना फाइंडिंग के हर इंजंक्शन के पिटीशन में कोर्ट को ये फाइंडिंग देना है तीनों इंग्रेडिएंट के बारे में, तीनों इंग्रेडिएंट अवेलेबल है या नहीं है, या 2 अवेलेबल है या 1 अवेलेबल है। अगर फाइंडिंग इस पर नहीं है तो वो ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, वो ऑर्डर चैलेंज हो सकता है, हाई कोर्ट में हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। अगर लोअर कोर्ट ने इंजंक्शन ग्रांट किया है, लोअर कोर्ट मीन्स अगर मुंसिफ ऑफ सब जज ने ग्रांट किया है, तो इंजंक्शन का ऑर्डर अपीलेबल होता है। वो अपील होता है ऑर्डर 43 में। इंजंक्शन का ऑर्डर अगर ऑर्डर 39 में हुआ तो ऑर्डर 39 का ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील है ऑर्डर 43 में, वो मिसलेनियस अपील कहलाता है। तो मिसलेनियस अपील में अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई ऑर्डर पास किया और पार्टी एग्रीड उसको चैलेंज करना चाहता है, तो मिसलेनियस अपील के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल होगा, उसके अगेंस्ट में दोबारा फिर सेकेंड अपील नहीं होता। तो अगर मुंसिफ और सब जज का ऑर्डर है इंजंक्शन का, तो उसका होगा अपील डिस्ट्रिक्ट जज क्या, और अगर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज क्या ही हुआ है ओरिजिनल जुडिक्शन में, तो उसका अपील होगा हाई कोर्ट में होगा। तो जहां भी लोअर कोर्ट ने अगर इंजंक्शन का ऑर्डर किया है और उस ऑर्डर में तीनों इंग्रेडिएंट को कंसीडर नहीं किया है और बिना कंसिडरेशन का ऑर्डर पास किया, तो गलत ऑर्डर है, तब वो ऑर्डर हायर कोर्ट से सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर मुंसिफ और सब जज ने किया है तो अपीलेट जुडिक्शन में डिस्ट्रिक्ट जज भी उसको सेटिस्फाइड करके रिमांड कर सकते हैं या खुद जजमेंट पास कर सकते हैं फुल फ्लेजेड। या अगर अपीलेट कोर्ट के हैसियत से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया है या ओरिजिनल कोर्ट के हैसियत से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास किया ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन, तो हाई कोर्ट उसको रिमांड कर सकता है, सेटिस्फाइड करता है। इस पर बहुत अच्छा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, अजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्वामी। अजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्वामी ये जजमेंट है। इसमें
लिखा है 2005 वॉल्यूम 10 SCC पेज 11. There is no finding about 3 ingredients of injunction. Hence, matter was remanded to High Court because the order is vitiated without such finding. तो क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है कि विदाउट गिविंग फाइंडिंग अबाउट 3 ingredients, the order of injunction passed by the court concerned is vitiated and is liable to be set aside. दूसरा जजमेंट है कि प्रामा फेसी केस पर बहुत सा कोर्ट में देखा गया है कि प्रामा फेसी केस सिर्फ है और प्रामा फेसी केस देखकर ही इंजंक्शन दे देते हैं. तो सिर्फ प्रामा फेसी केस पर भी इंजंक्शन देना प्रॉपर नहीं है. एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी जजमेंट मिलेगा, लेकिन ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पढ़ने के बाद क्लियर आइडिया होगा कि प्रामा फेसी केस रहने पर कब दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है. इसके लिए है एम गुरुदास वर्सेस रास रंजन 2006 वॉल्यूम 8 SCC 367. Apart from prima facie case, other factors are also required to be considered for grant of injunction. एक जजमेंट जो कंडक्ट के बारे में कहा था कि कोर्ट को ये डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, और कंडक्ट के बारे में भी देखेगा कि वो प्लेंटिव जो है विथ क्लीन हैंड आया है कि नहीं, फ्री फ्रॉम ब्लेम है कि नहीं, कोई छल प्रपंच उसने किया है कि नहीं, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं किया है, कोई डॉक्यूमेंट कंसील तो नहीं कर लिया है, कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट तो नहीं दे रहा है, कोर्ट से ऑब्जेक्ट इंजंक्शन ऑर्डर लेने के लिए कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दे रहा. ये सब को भी एग्जामिन करने का प्लीडिंग से और जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट है उस स्टेज में कोर्ट को देखना चाहिए. तो इस पर एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है सीमा वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिपोर्टेड इन 2006 वॉल्यूम 5 SCC 282. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है the discretion to grant temporary injunction is exercised when, apart from the ingredients, the conduct of plaintiff is free from blame and he approached the court with clean hands. Next judgment है मंडाली वर्सेस टी रामचंद्र AIR 2008 Supreme Court 2291. In this judgment, Supreme Court has held that besides consideration of three basic elements means prima facie case, balance of convenience, and irreparable loss. So besides consideration of three basic elements, the court must consider conduct of parties, suit for partition and injunction. Builder invested 3 crores. No injunction to stop construction nor to demolish. Construction allowed subject to the result of the suit. Just a few minutes before I mentioned about a special case in which the Supreme Court has passed such type of order. Then basic principle of regarding injunction is to protect and preserve the property. On this point, there are two judgments, important judgment. One is from Patna High Court, reported in a case of Dharamnath Ojha versus Raghunath Ojha. Dharamnath Ojha versus Raghunath Ojha, 2001 volume 2 PLR 268. In this judgment, the Honorable Patna High Court has said that if the lease has been admitted, lease means litigation. If the lease has been admitted, means if the suit has been admitted, it is the duty of the court to protect and preserve the properties in suit so that
after being success, the plaintiff may reap fruits of the decree. The Supreme Court has also the same view in a case reported in Dalpat Kumar versus Prahlad Singh, reported in AIR 1993 Supreme Court 276. And it should not be mechanically at the same time, which has been said. The order of injunction should not be passed mechanically, which has been said in AIR 1996, Supreme Court 2005. Similarly, in a case of a specific performance of contract, no injunction can be granted, because in a suit for injunction, a specific performance of contract, the property in dispute is not any land or property, because at that time the plaintiff has got no right, title, interest in the property. Plaintiff has only entered into an agreement with the other party for sale on certain conditions within certain times. And if the other party betrays or committed breach of the contract, and a suit is being filed, that is called a suit for a specific performance of contract. बयाना के आधार पर अगर कोई व्यक्ति टाइटल मुकदमा लाता है इस बात के लिए कि प्रतिवादी को आदेश दिया जाए कि हमारे पक्ष में जो बयाना हुआ उसके अनुसार जमीन का बिक्री कर दे, इसी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो उसमें प्रॉपर्टी पर तो प्लेंटिफ का कोई राइट होता नहीं है, वो एग्रीमेंट से उसको सिर्फ राइट होता है कि वो सूट प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी का है एग्रीमेंट में, वो एग्रीमेंट वाली प्रॉपर्टी के बनिस्बत डिफेंडेंट को कंपेल करे कि कोर्ट में आकर के आप यहाँ रजिस्टर्ड कर दीजिए, बाकी जो पैसा है ले लीजिए, या अगर पूरा पैसा दिया हुआ है तो पूरा पैसा दिया हुआ है, आप आगे रजिस्ट्री कीजिए, अगर पार्ट दिया हुआ है तो पार्ट ले लीजिए, आगे रजिस्ट्री कीजिए। तो कोर्ट डायरेक्शन देगा तो उसको आगे रजिस्ट्री करना पड़ेगा। तो ये जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो ऐसे केसेज में कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेंटिफ सूट फाइल करता है और डिफेंडेंट को कहता है कि दूसरे के यहाँ नहीं बेचे या जमीन पर नहीं जाए। तो जमीन पर नहीं जाने के लिए अब बेचने से भी नहीं रोका जा सकता, इसलिए कि प्लेंटिफ को कोई राइट ही नहीं है। प्लेंटिफ हैज नो राइट इन द प्रॉपर्टी, बट इट इज अ राइट इन पर्सोना by which the plaintiff is only entitled to compel the defendant to execute a sale deed in his favor and nothing more. ऐसे केसेस में पटना हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, कई जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आप लिख लीजिए, 1998 वॉल्यूम 1 PLR 262। उसी में 1998 वॉल्यूम 2 PLR में ही एक और है, 1998 वॉल्यूम 3 PLR में एक और जजमेंट है, 1998 वॉल्यूम 3 PLR 862। ये दो जजमेंट उस पॉइंट पर है। अब एक लास्ट जजमेंट एक इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति एडवर्स पोजीशन में है, और एडवर्स पोजीशन उसका टाइटल हो जाता है, आप जानते हैं, तो ऐसा सूट मेंटेनेबल है कि माई टाइटल बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ माई एडवर्स पोजीशन। सो बिकॉज आई एम इन पोजीशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी सिंस लास्ट 20 years, 30 years, 40 years, or more than 12 years continuously, peacefully, as of right, without interruption, जो एडवर्स पोजीशन का इंग्रेडिएंट है। तो ऐसे केसेज में वो सूट भी मेंटेनेबल है, और वो प्रॉपर्टी जो कब्जे में आ रहा है प्लेंटिफ के, और वो कहता है कि इंजंक्शन कर दिया जाए, अदर साइड से हमको खतरा है, तो अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरा पार्टी हमारे पोजीशन को इंटरडिक्ट नहीं करे, हमको बेकब्जा नहीं करे, डिस्पोजेस नहीं करे, तो इसके लिए भी सूट मेंटेनेबल है और इंजंक्शन मेंटेनेबल है, इंजंक्शन ग्रांट करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है रजनी बाई वर्सेस कमलाबाई में। रजनी बाई वर्सेस कमलाबाई रिपोर्टेड इन AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट 1946। So these are the broader aspects of the injunction so far as civil procedure code is concerned, and
matter of injunction is involved in any suit or proceeding which is pending in civil court, or to some extent, if it is a suit pending in civil court with regard to section 6, means summary suit under section 6 of the Specific Relief Act, or in any suit which is being filed for a degree for a specific performance of contract, or in extreme cases in a probate letter of administration, the court has power to grant injunctions. So, and also I have discussed about anti-suit injunction. So almost all type of injunctions and related case laws I have discussed. Now, lastly, I would like to mention that some courts are in habit of passing order maintaining a status quo. What is this status quo? A status quo is, सिंपल मीनिंग इज यथास्थिति, मीन्स जो जहां है जैसे है वैसे है. तो इट इज ए मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन. सपोज कर लिया जाए कि मुद्दाई ने केस लाया कि मुदाले हमारे जमीन में इंक्रोच करके मकान बना रहा है, उसको रोक दिया जाए, और कोर्ट ने पास कर दिया स्टेटस को. अब स्टेटस को पास कर दिया तो डिफेंडेंट कहेगा स्टेटस को तो हम मकान बना रहे थे, उसी समय आपने इंजंक्शन पास किया तो हम मकान बनाते रहेंगे, वो इंटरप्रेट करेगा. और प्लेंटिफ कहेगा वो तो रोक देना चाहिए था, स्टेटस को हो गया. तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेटस को इज वेग अनलेस इट इज डिफाइंड. तो जहां पर स्टेटस को अगर ऐसे केसेज में, इंक्रोचमेंट के केसेज में, कंस्ट्रक्शन के केसेज में, फोर्सफुल डिस्पोजेशन के केसेज में, जहां पर कि कोर्ट को जरूरत है कि अभी प्रेजेंट पोजीशन क्या है. अगर कोई आदमी कह रहा है कि इसमें हमारा खेत में हम खेती करते हैं, धान लगा हुआ, और मुदाले कह रहा है नहीं इसमें तो हम मार्केट बनाए हुए हैं, तो मार्केट है, इसका केस गलत है, तो कोर्ट कैसे समझेगा. तो उसके लिए कमिश्नर भेज करके उसको देखेगा, उसका फिजिकल फीचर, कन्फिगरेशन, ये सब रिपोर्ट से मंगाएगा, या उसके संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है जिससे कि कोर्ट को समझ में आ जाए. तो उस आधार पर उसको देख करके उसका फीचर्स को प्रिजर्व करने के लिए कोर्ट पास कर सकता है स्टेटस को. तो पहले उसको लिखना पड़ेगा कि आज का स्थिति क्या है, रिपोर्ट के आधार पर या डॉक्यूमेंट से जो पता चलता है उसके आधार पर लिखेगा कि अभी ये स्थिति है, यही स्थिति बरकरार रह जाए. तब दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू इंजंक्शन. तो समटाइम ऑर्डर ऑफ स्टेटस को अमाउंट्स टू इंजंक्शन. कुछ सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि स्टेटस को हमको पढ़ना चाहिए इन द लाइट ऑफ द प्रेयर मेड इन द प्लीडिंग. अगर प्लेंटिफ ने पिटिशन फाइल किया कि ये जमीन मेरा है, मेरे पोजेशन में, डिफेंडेंट को इस जमीन पर आने से रोक दिया जाए, आपको बेकब्जा करने से रोक दिया जाए, ये प्रेयर है, उसका रिलीफ भी है प्लेंट में, और अलग से पिटिशन इंजंक्शन का उसमें भी ये प्रेयर है, और कोर्ट उसमें पास करता है स्टेटस को. डिफेंडेंट इज डायरेक्टेड टू मेंटेन स्टेटस को, या बोथ पार्टीज आर डायरेक्टेड टू मेंटेन स्टेटस को, दोनों तरह का ऑर्डर होता है. तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन द लाइट ऑफ द प्रेयर मेड बाय द प्लेंटिफ इन हिज इंजंक्शन पिटिशन, इसका मतलब ये होगा कि अदर साइड को रोक दिया गया है, माने अभी तक वो कब्जा नहीं किया है. तो ये प्रिजम्पशन है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि ऑर्डर ऑफ स्टेटस को पास करने के पहले, अगर कोर्ट ये समझता है कि ऑर्डर ऑफ स्टेटस को पास करना है तो उसके पहले क्या स्टेटस को है, इट मस्ट बी डिफाइंड, तब वो ऑर्डर वैलिड है. अदरवाइज इट इज ए वेक ऑर्डर एंड इट इज लायबल टू बी इंटरप्रेटेड और मिस इंटरप्रेटेड इन आइदर वे, एंड इट मे क्रिएट कंफ्यूजन. अब बाद में अगर उसका डिसोबीडियंस हुआ तो उसके डिसोबीडियंस में फिर उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा जो ऑर्डर को डिसोबे करेगा. इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का इस पॉइंट पर, जिसमें कि स्टेटस को डेप्रिकेट किया है. ये रिपोर्टेड है AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट 127. ये बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट. So this is all about injunction. If anything is left, that will come in next lecture. Now the injunction matter, so far as technical aspect and legal aspect, it is complete for all practical purposes of all of you, either the members of the bench or the members of the bar or the members of legal fraternity
who are interested in this way or that way in getting injunction or getting the injunction order vacated. That is all. We shall meet in the next lecture series. Thank you all.